Yes. Good evening, dear students. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening. How are you? Fine, sir. Very nice. Fine, sir. Okay. Fine, sir. Okay. आप नाराज नहीं न हो? No, sir. हमें उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे. 1-2 घंटा दिया जा सकता है छुट्टियों में भी. For good cause. Yes, sir. बिल्कुल, sir. Yeah. So I think we can start now. Barkacha students are available here. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Welcome to all. See, my objective is that not only to learn the things for your examinations and other things. My objective is that you have to apply it in your practical life wherever you are. मैं अभी लगता है 1 हफ्ते पहले की बात है, हमको हमारे प्री स्टूडेंट रत्नेश जो रायपुर में वो बैंक ऑफिसर है, हमें लगता है 6-7 साल पहले ज्वाइन किया था. He did his MSc in genetics. हालांकि हम लोग हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री लेके बच्चा रिसर्च और टीचिंग में आएगा और हाई क्वालिटी रिसर्च करेगा. लेकिन ठीक है, सबके अपने रास्ते हैं, सबको अपने हिसाब से आगे बढ़ना है. हमारे बहुत सारे थोड़ा दुख होता है, बहुत सारे ब्रिलियंट स्कॉलर बिकॉज ऑफ देयर ओन फैमिली प्रॉब्लम और वॉट एवर सो दे आर गोइंग टू बैंक एंड अदर प्लेसेस. ऑफ कोर्स यू हैव टू डू. एक जगह सभी लोग नहीं जा सकते, चारों तरफ जाना है. तो भी वॉट एवर यू हैव लर्न, you have to apply these things also in those areas also. हमें लगता है he did not send me the details what happened, which I speculate. I could not find time to talk to him. उसने रत्नेश ने ये लिखा था कि सर वो हमें लगता है काफ़ी एरिया में लोनिंग वगैरह होती होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड लोनिंग होती होगी. सो दे आर कंसर्न विद दैट. सो वॉट एवर आर इंश्योरेंस, these things which I speculated, I could not find time to talk to him. So I speculated that they might have given the loan or subsidy or whatever or insurance. तो उसने भेजा था कि सर ये वीडी साइड लार्ज एरिया में नया वीडी साइड यूज हुआ था किसानों के यहाँ, और 90% उसने फोटो भेजा था, वो जल गया है. आधा से ज़्यादा वो 90% फसल ही जल गया सारा. अब इसमें हम क्या करें? हमने लिखा रत्नेश, इसमें मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ. मोर ओवर जो पौधे मर गए वो तो रीजनरेशन, राइस का पौधा था, रीजनरेशन देख लो, अगर हो सकता है तो चांसेस कम है. और
ऐसी कोई दवा तो नहीं है कि एक दवा छिड़का गया फिर दूसरा छिड़क के उसको बचाया जाए. Maybe if possible you drain whatever water is there and irrigate it with fresh water. ये हमने उसको recommend किया जिससे उसके जो impacts हैं थोड़ा कम हो. Here I mean to say that he is in bank. Still he has to apply whatever he has learned. So you have to be very, very careful. Wherever you are, whatever you have learned, you are expected to contribute in this agriculture wherever you are. Maybe if you are in civil services, even then people will expect from you that you can contribute to agriculture, or even in bank, or even agriculture officer in state government, or in seed multinationals, wherever you are. तो मैंने ये कहा कि हमारी टीचिंग वो इसलिए नहीं कि आप अच्छे मार्क्स पा के पास हो जाएं, काम खत्म, इसके बाद भूल जाएं. हमारी टीचिंग इसलिए होती है कि यू कैन अप्लाई ऑल दोज थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे, हाउ कैन वी डेवलप न्यू वैरायटीज in self-pollinated crops, whatever crops are there. So by little modifications you can apply in all the similar procedure in all the crops, the self-pollinated crops, whether it is rice, wheat, or even mustard, which is often cross-pollinated but being developed through those methods available in self-pollinated crops. Pea, Bengal gram, whatever, you can apply the same method in all self-pollinated crops. So as I work in rice, so I used to give the examples in rice. So whatever you are applying in rice, the same thing can be applied in other self-pollinated crops too. क्योंकि मैं राइस में काम कर रहा हूँ इस समय, तो मैं एग्जाम्पल्स उसका देता हूँ. हालांकि वो आप दूसरे self-pollinated क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं, करते हैं. सो आज हम लोग का टॉपिक था कि ट्रांसक्रिप्टिव सेग्रीगेंट्स कैसे एक्सप्लॉइट करें बल्क मेथड से, और बल्क मेथड है क्या और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों इसको यूज करते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कितने एडवांटेजेस हैं, कितना डिसएडवांटेजेस हैं, कितना अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या इस समय हम कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं. और बल्क मेथड में कई सारे मॉडिफिकेशंस भी हैं जो हमने एक्सप्लेन किया है. सो उसको भी आप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट आल्सो, द पर्टिकुलरली विच इज वेरी वेरी useful modification, single seed descent method which we call SSD. तो इसमें बल्क मेथड में ये है कि हम breeders have to make large number of crosses every year, and he has to handle large number of crosses every year. F1, F2. कौन आ गया? वॉइस कम. किस नाम से आ रहा है? बेटा किस नाम से आ रहा है? BHU फायर बी पे आएगा. चलो ये लेफ्ट में है, भाग गया क्या? हाँ, he has left, right? Yeah, no problem. BHU fire ना? Sir, he keeps joining. You can't disallow him. अच्छा. You will actually join and create disturbances. And he has
like created this nuisance since several months, and it's not new. So I'm not very advanced in these things. I cannot do anything. In later classes, I will try to use our BHU website. I could not find time to see that how I can use that BHU website. So I think in that we may not get this type of trouble. देखेंगे हम आगे. चलिए चलते हैं ऐसे ही. तो I said कि बल्क मेथड क्यों हम करते हैं, चूंकि लार्ज नंबर ऑफ ब्रीडिंग materials we have to advance F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, and then we are going for testing and station testing, then all India testing, all these things. So we don't find that much time to devote in all the crosses, in all the hybrids. So this is one possibility. If you don't have that much time, so can you do this through bulk method? That you wait till the population is stabilized and attain the homozygosity, and once you have attained the homozygosity, जब मिल जाता है F6 या F7 जनरेशन, F6 में ही अगर आपको लगता है कि नहीं पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर सकती है, लग रहा है, वहाँ भी कर सकते हैं. अदरवाइज वन शुड गो टू वेट टिल F7, और F7 में होमोजाइगोसिटी अटेन कर लेगा. तो अब जो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वॉट एवर यू हैव इन योर यू हैव मेड अप इन योर माइंड एट योर ऑब्जेक्टिव, so you select those plants and other plants too which are looking desirable. So accordingly you are selecting the plants at, if you have F7 generation, the plant which you are selecting that has become homozygous. So from that particular single plant in F8 generation you can go for multi-row and you can go for station trial. And see, so till F6 breeder is just commanding or asking their technical staff just to go for bulking and advancing the generation. And they are skilled people and they know how to Sir, I told you now you will keep doing this shit again and again. क्या करें बेटा? What should I do now? Sir, there is a racket because in eBatch also there is an account called Raghav. He has joined. So there are 4 accounts: BHU, Fireback, Raghav, and Single. So I think there is a racket and they are doing this since several months and nothing is taken against them. So they have just going far and far. नहीं पकड़े जाएंगे, आज नहीं कल तो पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. चलो हम पकड़े तो जब से कोर्स स्टार्ट हुआ तब से चल रहा है. हाँ अभी तक कुछ नहीं. अब क्या कहा जाए, या तो हम लोग उसी के पीछे पड़ जाएं, अपना काम समय बर्बाद नहीं कर पाते हैं लोग. चलो बेटा, वी हैव टू मैनेज. We'll see that. I will try to shift in BHU website. I think in that फर्स्ट टाइम अलाउ करेंगे तो सर प्लान को ज्वाइन होगा. हाँ बेटा, सर फर्स्ट टाइम अगर वो ज्वाइन करते हैं जब सब बच्चे, तो उस समय अगर अलाउ किया जाए तो फिर वो रीजॉइन नहीं कर पाएंगे. ओके. तो लेकिन अब उसमें ऐसा है ना कि वो एक बार कई 10-20 बच्चे को करते हैं ज्वाइन, सबको हम लोग एक साथ कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है. नहीं तो आधा घंटा लग जाता है उसी में ज्वाइनिंग में.
तो देख पाए तब ना। खैर जरा मैसेज कर देना हमारे व्हाट्सएप पे कि क्या क्या नाम से आ रहा है। आई विल ट्राई टू ज्वाइन करने का कोशिश वो न कर पाए, वी विल सी लेटर। चलो कोई बात नहीं, चलने दो। सो यू सी दैट हाउ यूजफुल दिस बल्क मेथड। सो व्हाट एवर, अच्छा ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। So we can handle large number of breeding population for developing new varieties. So in bulk method you have seen that some problems are there. Large number of population, you are bulking, advancing. So you have seen the modification, and more modifications now have come. There is another method which will be taught to you later in your advanced courses. RGA, rapid generation advancement. That is also a type of bulk method, you can say. We are using a rapid generation advancement for advancing our material through bulk method fast. Can we, as we are using only one season, or if it is rice in northern states, we are using only one season, in 1 year. So can we use through use of RGA, rapid generation advancements, can we grow the population twice in a year? Can we do this? So you will be learning in your advanced courses, not here. So that is single seed descent method is little bit the better than the bulk method, where you are reducing the number of population during bulking and you are requiring less area, man, material inputs for advancing your materials, your breeding materials. So this was today's topic. I think you all must have gone through that. So whatever doubts you are having, we can discuss all those just now. So one by one, let me bring the plain paper. Just I'm coming, please. हाँ बेटा, अपने डाउट्स आप लोग बताएं, सो दैट वी कैन डिस्कस। रात में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम करते हैं सब। सर अगर आप एक बार उसको निकाल देंगे ना तो फिर वो नहीं बच पाएंगे। हाँ वही तो। सर इसको रिमूव कर दीजिए सर। तो उसको लेस करने के पहले आप उसको निकाल दीजिए। हाँ बोलने से पहले। वही BHU करके है ना, भाग गया। तो सर नेक्स्ट पर आएगा ना, फोल्डर खोल के रखिए, वो जब आएगा उसको तब निकाल दीजिए। हाँ। फिर एंट्री नहीं कर हाँ पाएगा। ये फोल्डर ही खुला रहेगा। ओके हाँ बेटा, अब आप कोई बात नहीं, यू डोंट बी डिस्टर्ब विद दैट इडियट पीपल। वो लेट अस डिस्कस। चलने दो, गाना भी चलेगा, हम लोग काम भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, करने दो उसको। वो हाँ बेटा, अपने प्रश्न आप बताएं वन बाय वन। मोनिका, Yes, sir.
प्रश्न पूछो। सर एक क्वेश्चन था सर, वो पर्पस ऑफ बल्क मेथड में आपने हाँ। बोले थे वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन हाँ ऑफ हाँ बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट विल हेल्प टू अदर्स आल्सो। वेटिंग फॉर opportunity for selection of homozygous plants. ठीक है, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन, यही ना? हाँ सर। और कुछ? नहीं सर। हाँ चलिए, गौरव। हाँ बेटा, दिव्या, दिया। सर बल्क मेथड में F7 जनरेशन के लिए आपने बोला था कि पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनस एंड ईच प्लांट इज होमोजाइगस। सर उसका मतलब ठीक है बेटा, हो गया। Population is heterogeneous but plants are homozygous, हाँ? यही ना? यस सर। ठीक है, हाँ हो गया आपका। नेक्स्ट, या दिव्या और भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नहीं सर। आशीष you want to say something? यस सर, सिंगल सीड डिसेंट मेथड में सर हम F6 में सर सिलेक्शन करते हैं, और सर नॉर्मल बल्क मेथड में सर हम F7 में सिलेक्शन करते हैं सर, ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। और हाँ एक मिनट, हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बोलिए गौरव, गौरव बोलो। हाँ गौरव बोलो। आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है गौरव? हेलो सर, प्रणव पूछ रहा था सर, प्रणव। अच्छा प्रणव पूछ रहा है। हाँ प्रणव, हाँ प्रणव पूछिए बेटा। सर बल्क मेथड के सर एक आप डिमेरिट्स बताए थे कि आप समटाइम्स डिजायरेबल प्लांट्स आर मेड। बल्क मेथड में, एग्जांपल के मदद से बल्क मेथड में क्या हुआ बेटा? सम प्लांट्स समटाइम्स डिजायरेबल प्लांट्स आर मेड। sometimes desire, हाँ या good question, desirable plants are missed ना? हाँ ठीक है। और सर ये क्वेश्चन और था। हाँ बेटा बोलिए। FS3 मेथड में सर F1 में तो हम स्टेप प्लांटिंग करते हैं, F2 F3 F4 F5 में फिर डेंस प्लांटिंग करते हैं सर। ठीक है, F1 में क्या करते हैं? F1 में स्पेस, अच्छा, और फिर F2 F3 इसमें डेंस क्यों करते हैं? ठीक है बेटा, डन। और कुछ? सर आई हैड अ डाउट इन SST। बेटा आप एक मिनट, कौन बोल रहा है? सम्यदीप। यस सर। हाँ भौमिक बोलिए। पहले भौमिक अपने वो क्या उसको बोलते हैं, उस पे अपना फोटो चेंज कर लो, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीपी में फोटो चेंज कर लो, करोगे? ओके सर। हाँ, सोते हुए आ रहा है। सर in SST you said that in F7 states individual desirable plant in segregation programs may be selected. सर इसको थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ फिर से पूछो बेटा, फिर से। इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट इन सेग्रीगेशन। एक मिनट रुको। एक मिनट, चलो। हाँ भौमिक बोलो बेटा। सर इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट इन सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट में एक मिनट, इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट हाँ in segregation progenies may be selected. in segregating progeny huh? may be selected huh? Okay, I got it. Something more? Sir, there was another that sir, what is the basic difference between SST and normal bulk method?
It's ठीक। that in SST we take lesser amount of seats like 1000 to 2000, and in normal we take 3000 to 5000. Other than that, what are the differences? ओके, ठीक है, ठीक है। व्हाट आर द अदर डिफरेंसेस? ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट। सर अचीवमेंट बेटा एक मिनट, एक मिनट। निधि, यस सर हाँ बेटा बोलिए। in spite of its merit it could not be widely used by students while तुमने बहुत वैसा क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत टिपिकल है। इट इज वेरी टिपिकल टू से ऑनलाइन है। इन स्पाइट ऑफ मेरिट्स, इट्स मेरिट्स इट कुड नॉट बी है। yes sir ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ, ये रजक ना? हाँ एक मिनट, रजक को करने दो बेटा, एक मिनट, रजक बोल रहा है। हाँ हाँ एसएसटी में डिफॉल्ट जनरेशन में हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग स्पेस प्लान क्यों करते हैं? हाँ बेटा, वो क्वेश्चन आ चुका है, हम डील करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा बोल रही थी कोई? सर काजल। यस सर मैं बोल रही थी। Yes, काजल। काजल को मैं थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ यस सर मैसेज देने के लिए। हाँ बोलो काजल, पूछो, फिर से पूछो बेटा, रिपीट योर। हाउ ऑफ, ठीक है बेटा, एक मिनट। हाउ ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, यही ना द टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्या है? यस सर समथिंग मोर? हाउ ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग द टाइम, यही ना बेटा? और कुछ? यस सर ओके। और क्वेश्चन करो बेटा। कौन बोल रहा है? हाँ आदर्श बेटा बोलिए। आदर्श मिर्जापुर से ना? हाँ आदर्श बोलो। यस जैसा इसमें डिपार्टमेंट में जो बल्क मेथड होता है उसमें 6 to 7 जनरेशन तक बल्क में ड्यूरेशन होता है। 6 to 7 जनरेशन बल्किंग होता है। ठीक है सर, उसमें क्या होगा अगर इस बल्क में ड्यूरेशन को 20 to 30 सीजन तक किया जाए? 12 to 13? सर मतलब बढ़ा के 20 से 30 सीजन तक किया जाए तो क्या होगा? अच्छा ठीक है। हाँ आदर्श हेलो। यस सर। हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अगर 20 से 30 किया जाए ना? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट सर कौन बोल रहा बेटा? हाँ बेटा शशांक, आवाज कट रही बेटा तुम्हारी। यस सर। आवाज कट रही थी। हाँ बताओ, अभी बोलो। हेलो सर, अब आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा शशांक आ रहा। सर कैरेक्टर सिलेक्शन तरह से लॉस हो जाता है सर, वेरिएबल कैरेक्टर सिलेक्शन में पर मैं तो मुझे कॉम्पिटिशन में कोई मेथड है क्या? ओ बदमाश लोग आगे, आवाज तुम्हारा नहीं। हाँ बेटा बोलिए अब आप। सर बोल रहे सर बल्क में सर जो एक्सपेक्टेड की तरह से जो वेरिएबल कैरेक्टर से लॉस हो जाता है उसके मतलब सर इम्प्रूव करने के लिए कोई मेथड है क्या? अच्छा
ठीक है बेटा, हाँ। और कुछ? आ, आ, क्या राजनंदिनी, तुम कहाँ से हो? भूल गया मैं। मध्य, अच्छा, राजनंदिनी रायगढ़। हाँ राजनंदिनी, हाँ बेटा बोलिए। Sir, I have a doubt but not related with bulk method or single seat testing method. Sir, may I ask? अच्छा चलो पूछो। Sir, while exploring the YouTube video, sir, I have read that mass selection, which we have read under the self-pollinated crop. Sir, the frequent mass selection is frequently used for the cross-pollinated crops too. Sir, but we have read it under the self-pollinated crops. Sir, is it true? हाँ, फिर से बोलो बेटा। इट इज यूज्ड इन, Sir, it is also used for cross-pollinated crops too. हाँ Is it true? हाँ, यस, सही है, बिल्कुल सही है। Sir, how? बेटा उसमें देखो, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी हम सेल्फिंग नहीं करते हैं ना, और इसमें मास सिलेक्शन में सेल्फिंग कर नहीं रहे हैं। तो व्हाट एवर डिजायरेबल प्लांट्स आर सीन इन ओपीवी, ओपन पॉलिनेट वैरायटी, आप अच्छे प्लांट सेलेक्ट करके आप सेल्फिंग तो करना नहीं, आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ के और उसकी जो है वो प्रोसिजर टेस्ट कर लीजिए। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। अच्छा, sir, but in mass selection we don't do Crosby test, no? हाँ, या प्रोसिजर टेस्ट तो नहीं, लास्ट में तो आपको हम प्रोसिजर टेस्ट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में जो आप प्रोसिजर जो फाइनल हो गया, जो होमोजाइगोसिटी अटेन कर ली, इसके बाद तो टेस्टिंग करते हैं। हम उस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम प्रोसिजर टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोसिजर टेस्ट मींस दैट इज आल्सो प्रोसिजर, F7 इज आल्सो प्रोसिजर। सो यू आर टेस्टिंग, सीड ट्रायल चल रहा है ना, हम उस सीड ट्रायल की बात कर रहे हैं कि लास्ट में आप क्या प्रॉब्लम है। मास क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से अगर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है या कंपोजिट से या सिंथेटिक्स है, ओपीबी की तरह ही हैंडल करते हैं, और उसमें मास सिलेक्शन के थ्रू आप सेलेक्ट करिए, जैसे सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, सेल्फिंग करते नहीं, उसको सारे को बल्क कर दिए, आगे बढ़ गए। इस तरह से अगर आपको अच्छा लगता है और आप फील्ड ट्रायल कर लें और अच्छा दिखा, तो आप एक दूसरी वैरायटी बना दें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। सो मास सिलेक्शन इज यूज्ड इन बोथ द क्रॉप्स। सो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर आपको लग रहा हो तो पूछिए, कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो बताइए। राजनंदिनी बताओ, उसमें क्या दिक्कत है? ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी अगर बनाना है या कंपोजिट्स को इंप्रूव करना है, सिंथेटिक्स को इंप्रूव करना है, तो दैट कैन बी डन मास सिलेक्शन, नो प्रॉब्लम। और आपने देखा है मास सिलेक्शन से कोई वैरायटी अब नहीं डेवलप हो रही है इन सेल पॉइंट क्रॉप्स में, और इसी तरह से उसमें भी है। अदरवाइज पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट यूज करते हैं क्रॉस पॉइंट क्रॉप्स में। आप रिकरेंट सिलेक्शन जो हुआ मेनली, उसको यूज करते हैं। राजनंदिनी बताओ। बहरहाल उसको हम लोग डील करेंगे बाद में। इतना जान लो कि मास सिलेक्शन कैन बी यूज, इज बीइंग यूज्ड इन बोथ द क्रॉप्स। हाँ बेटा, कौन बोल रहे हैं? दीपांजन। Yes, sir. रक्षित, हाँ बोलिए बेटा। Sir, but I have doubt in the pedigree method. हाँ Of natural, I have doubt in the pedigree method, sir. बेटा अब ऐसे पीछे आगे करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए कर लीजिए। But sir, I am just telling that in selection of parents, sir. Sir, about the mid parent value. Sir, so what is the additive gene action in mid parent value while selection of
व्हाट इज द मिड पेरेंट वैल्यू? क्या हम आई कुड नॉट रिकॉल। पेडिग्री मेथड में क्या करना है? Sir, pedigrí method, sir, in the evaluate selection of parents, sir. हाँ At one, there are many criteria, sir. So in here, it is written, sir, mid parent value. Sir, in mid parent value, it assumes additive gene addition so that mid parent values reflect mean of F2, F3 populations from the respective parental combinations. फिर से थोड़ा बताओ बेटा, एक्टिव जीन एक्शन से क्या करना है? तुम बुक में लिखा है वो बता रहे हो? Yes, sir. बुक में तो लिखा था सर, कोई सर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में सर क्या क्या सर क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। हाँ हाँ और सर इसमें एक और था सर, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस सर। हाँ। ये समझिए सर, मल्टीवेरिएट में सर लिखा है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स बेस्ड ऑन मल्टीवेरिएट एनालिसिस एम्फसाइजेस जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द पेरेंट्स। एक मिनट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस से क्या करना है? The selection of parents based on multivariate analysis emphasizes genetic variation, मतलब सर दो हाँ ठीक है परफॉर्मेंस पे बेस्ड। ठीक है बेटा, डील करूंगा। वैसे ये टॉपिक अभी नहीं डील करना था, चलो थोड़ा टाइम लगेगा और कोई बात नहीं। आप लोग कोशिश करिए जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर तब ऐसे ही रह जाएंगे बेटा। आप लोग कोशिश करिए, लास्ट में फिर रखेंगे सारा हम। अभी ये कोशिश करिए कि जिस पे हम बात कर रहे हैं उसी पे करिए, ठीक है? अदरवाइज और लोग भी डिस्टर्ब होंगे और समय बर्बाद होगा। तो हम तो डील कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम होगा। तो आप ट्राई करिए कि जिस पे हम लोग डिस्कशन, हम तो काफ़ी पहले बोल देते हैं कि ये टॉपिक आप देख लो, इस पे क्वेश्चंस वगैरह बना लो अपना, तो बना लिया करो, उसी पे स्टिक करो। आगे कभी जनरल वो करेंगे जब कोर्स खत्म होगा, तो फिर वो उस तरह का रखेंगे कि सारे कोर्स से पूछो आप। हाँ बेटा, कोई प्रश्न करना चाह रहा है बताओ। एक मिनट, 1 by 1। अभी बेटा 1 मिनट, अनिकेत पूछ रहा है क्या? अनिकेत, हाँ अनिकेत थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारा आवाज बहुत धीमा आ रहा है। सर सिंगल सिटीजन मेथड से सर हम लोग प्रोड्यूस किया डेवलप करते हैं सर रिकॉम्बिनेंट इनवेट लाइंस। सर इनवेट लाइंस तो सर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का मतलब उसके प्रोजेनी का मतलब वो डेवलप करता है सर। तो ये मतलब से डिफरेंट कैसे है? हाँ बेटा, क्या बोले? रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन तैयार करते हैं एसएसडी से? यस सर। ठीक है, तो कैसे करते हैं यही करना है ना? यस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा, और कोई लड़की पूछ रही थी बेटा, बताइए, पूछिए अब। हेलो, हाँ सौम्या, 1 मिनट उस बेहुदा को हटने दो पहले। हाँ बेटा बोलिए सौम्या। सौम्या बोल रही है ना? हाँ बोलिए बेटा। नेचुरल सिलेक्शन ही होता है जो क्राइटेरिया ग्रोथ है फिर रिप्रोडक्शन का, पर जब बर्थ मेथड में किस तरीके से वो मतलब इफेक्ट करेगा डिजायरेबल प्लांट्स का लिस्ट होगा। हाँ सौम्या, और कुछ? ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा हेलो। Sir, as there is a role of natural selection in bulk method. बोधिसत्या है? Yes sir. बोधिसत्या, आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? Sir, West Bengal. हाँ ठीक है, बोलिए। Sir, as the natural selection is involved in the bulk method, हाँ। so sir there should be mixed
list of undesirable traits, na? हाँ So how can we manage that? हाँ ठीक है। ठीक है। बस कुछ लोग और डाउट्स रखे हैं या किया जाए डील? हमें लगता है बहुत क्वेश्चंस मिल गए हैं, हमें डील करना चाहिए। चलें, अब किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ? ठीक है। हाँ मोनिका का प्रश्न था पहला। जी सर। हाँ मोनिका, आपका प्रश्न था वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन। हाँ सर। वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन मीन्स यही हुआ कि वो सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये समझ लो बेटा, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन मीन्स व्हेन your population is going to attain the homozygosity, till that you are waiting. Otherwise, if you are not waiting, you are starting your selection as in pedigree method, the plant which you are selecting, it is going to segregate in next generation. So this is the benefit of this waiting for opportunity for selection, means the plant for which you are selecting that particular plant, that will be 100%. In next progeny, next generation, it is not going to change. But in other, the pedigree method where you are selecting from beginning, F2, the plant which you are selecting, its progeny is going to segregate. So that is creating problem to you, to the breeders. This was the meaning, Monica, waiting for opportunity for selection. Could you get it? Yes sir. Yes I got it. Okay, that's good. Thank you sir. Okay. It was a good question, Monica. Diya, you said क्या मजा मिलता है उन समय को। चलो ठीक है, आप कर लीजिए, इधर नहीं जाना हो, आ जाए। हाँ इधर जा सकते, इधर नहीं। थोड़ा सा पानी पिलाइए। वो हाँ बेटा, दिया, Yes sir. F7 population heterozygous but plants are homozygous, ये कहना था ना आपका? Yes sir. दिया, इसमें देखिए आप, पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस बेटा, इसको मानती हैं आप बल्क मेथड में? नहीं मानती? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, बेटा आप पॉपुलेशन का मतलब समझ रही हो ना? सारे प्लांट्स जो भी आपने ग्रो किया है, सारे प्लांट्स पॉपुलेशन हो गया। तो आपने जो सारा ग्रो किया है F7 में, बल्क मेथड में, हाँ बेटा, Yes sir. तो वो सारा पूरा खेत आपका दिख रहा है, होमोजीनियस दिख रहा है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ रही हो ना दिया? Yes sir. तो नहीं हाँ बेटा, हेलो, होमोजेनियस नहीं हो रहा है, हेटेरोजेनियस हो रहा है। पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस दिख रहा है ना? हाँ।
अच्छा, तो वो तो दिख रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आपका ये कहना है कि बट प्लांट्स आर होमोजाइगस, यू सेड दिस ना कि सर पॉपुलेशन जब हेट्रोजीनियस है तो प्लांट्स आर कैसे होमोजाइगस हो गया? यस बेटा, आप, हाँ, दिस वाज योर क्वेश्चन, लेट मी क्लियर इट। और सबके लिए इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, सभी लोग जान लीजिए कि ये एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं ये सब एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न ही है। वो आप ये समझ लें कि F7 जनरेशन में आपने बल्किंग किया है तो F7 में पूरा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस दिखेगा, लेकिन बेटा जिस प्लांट को आप पकड़ोगे, वो प्लांट जो सेलेक्ट करोगे वो होमोजाइगस है। कैसे है? उस प्लांट को सेल्फ करके अगर प्रोजनी रो नेक्स्ट ईयर F8 में लगाओ तो सारे प्लांट एक जैसे होंगे। दैट सेज कि प्लांट विच यू सेलेक्टेड इन F7 जनरेशन और F8 में आपने प्रोजनी रो लगा दिया और सारे प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं, तो F8 बताता है कि F7 वाला प्लांट जो था, जो आपने पकड़ा था, दैट वाज होमोजाइगस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग दिया। ये सबको हेल्प करेगा। एकदम अच्छा से समझ में आया तो बोलो, नहीं फिर से बताएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा सभी को। तुम क्लियर हो गए ना एकदम? हाँ सर। दैट्स गुड। चलो आशीष बेटा, आपने SSD में F6Y ऐसा कुछ बोला था ना? SSD में उसमें F6 में सिलेक्शन करते हैं। हाँ, और सर नॉर्मल बल्क मेथड में F7 में सिलेक्शन करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ओके, एक मिनट, लेट मी सी। एक मिनट चेक करने दो। बेटा जनरली ये देखा गया है कि SSD में आप सिंगल सीड ही लेकर आगे बढ़ रहे हो सभी पॉपुलेशन से। तब जब सिंगल सीड लेकर बढ़ रहे हो तो वेरिएबिलिटी घटते जा रही है। सो होपफुली वी आर एबल टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन इन F6 जनरेशन। हालांकि उसमें भी F7 में जाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं और वी आर केयरफुल कि ऐसा ना हो कि गलती से वो सेग्रीगेशन चल रहा हो और F6 में ही हम सिलेक्शन कर लें, तो ऐसा नहीं करना है। बट इट इज होपफुली बिकॉज ऑफ दैट इफ यू आर सेलेक्टिंग single seed from each and every plant 1000 whatever you have, so there is opportunity of attaining the homozygosity as you are getting in bulk method in F7, maybe in SSD you are getting in F6 only. So that is why we are doing so. इतना ही अभी मान के चलो, बाकी बाद में क्लियर होगा बेटा। आशीष ओके सर, ठीक है। प्रणव थोड़ा सा पानी दीजिए। प्रणव बेटा, बल्क मेथड समटाइम्स डिजायरेबल प्लांट्स आर मिस्ड, है ना? हाँ, बल्क मेथड में डिजायरेबल प्लांट्स, वही हमारा कहना है कि बेटा आप तो कितना पॉपुलेशन लेकर चल रहे हो? 30,000 से 50,000 ना? हाँ, उससे ज्यादा आप ले भी नहीं पाओगे, उससे ज्यादा जमीन भी नहीं मिलेगा आपको। और प्रोजनी में 30,000 से 50,000 ही नहीं है, लाखों पौधे हैं, आप बहुत सारा पौधा छोड़ दे रहे हैं। तो सैंपलिंग एरर्स में हो सकता है कि कोई अच्छा सैंपलिंग करते हो ना फिर, क्योंकि लाखों पौधे हैं आपके प्रोजनी में। आप 30,000 पौधे से देखिए, अगर जो ईल्ड आता, जो सीड आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, लाखों लाख आएंगे।
तो लाखों प्लांट तो हमको लेकर चलना नहीं, सैंपलिंग करते हैं। और सैंपलिंग एरर में बेटा हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा सीड निकल जाए, पौधा बर्बाद हो जाए। यही कहना है बेटा उसका। बल्क मेथड में समटाइम्स डिजायरेबल प्लांट्स आर मिस्ड। दिस इज द रीजन ऑफ दैट। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट प्रणव? हाँ, आपने और एक क्वेश्चन किया था प्रणव कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड में F1 में स्पेस प्लांटिंग करते हैं और फिर F2, F3, F5, F4, F5 में डेंस प्लांटिंग करते हैं बेटा, यही ना? F1 में सीड तो बेटा कितना रहता है? 30, 40, 50 यही तो रहता है। हाँ, तो बहुत सारे आप क्रॉसेस लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे क्रॉसेस लेकर चल रहे हैं, तो उसमें आपको ठीक वो बेटा स्पेस प्लांटिंग इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में आपको वो प्लांट्स हेल्दी रहें और नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा सीड आपको मिल सके, यही है। और इसके बाद जो F2, F3, बल्क इसमें SSD में भी, चाहे बल्क में भी, F2, F3, F4, F5 में चूंकि स्पेस डेंस प्लांटिंग इसलिए करते हैं कि हम सिलेक्शन नहीं करते हैं। चूंकि सिलेक्शन करना होता है तो हमें स्पेस प्लांटिंग करना होगा, जाके देखना होगा। सिलेक्शन तो करना ही नहीं है, हम अपने टेक्नीशियन से बोल दिए कि यार बल्किंग करते चलना और F6, F7 तक चलते चलो, फिर F6 से हम देखेंगे, हम आएंगे तब देखेंगे, इतना बोल देते हैं। तो उसमें जब सिलेक्शन करना ही नहीं तो डेंसली आप ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणव, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? ओके बेटा। नेक्स्ट भौमिक। भौमिक, आपने पूछा ये F7 इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट्स सेगमेंट बेबी सेलेक्टेड। थोड़ा सा आप फिर से पूछो तो प्रणव, क्या इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट्स? भौमिक, Sir, in SSD you said in F7 that individual desirable plant in segregation project is may be selected. Sir, इसका मतलब अच्छा, हाँ, ठीक आ गया। Why you are selecting the individual plants also in SSD, यही ना? in F7 generation. You see, sometimes in SSD you have seen the selection in F6 generation और आपने आगे ग्रो कर दिया, तो it is expected कि SSD मेथड से you have attained the homozygoity in F6, लेकिन वो प्लांट आपने जब प्रोजनी रो लगाया F7 में आप गए तो F7 में बेटा हो सकता है कोई ऐसा प्लांट की प्रोजनी जो है अभी भी सेग्रीगेट कर रही है, तो अगर सेग्रीगेट कर रही है और पौधा अच्छा दिख रहा है तो सिलेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भौमिक? करना चाहिए सर। करना चाहिए ना? Yes sir. तो आर यू सेटिस्फाइड? आप नहीं, अभी नहीं। Yes sir, got it. Okay. Then you said that what are the differences between SSD and bulk method? तो बेटा SSD और bulk method में मेन यही वो है कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो आप शुरू में सिलेक्शन किए हैं वो सारे का रिप्रेजेंटेशन हर जनरेशन में होता जाए, मिस न करने पाए। जैसे उसमें हम मिस कर जाते हैं, ये भी फायदा है। सैंपलिंग एरर से बल्क मेथड में हम मिस कर जाते हैं और एसएसडी में हमें ये लगता है कि भाई जो पौधा हमने शुरू में सेलेक्ट किया है फिर हम हर साल उसका रिप्रेजेंटेशन हम हर साल करते जा रहे हैं, तो हम मिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह एक एसएसडी में फायदा और है। और दूसरा तो पता ही, आपने कहा ही कि आप पॉपुलेशन साइज कम हो जाता है तो खर्चा कम हो जाता है, ये बहुत सारी चीजें
और उससे और भी फायदे हैं, आप ऑक्सीजन में भी चले जाते हैं, बहुत तरह के फायदे हैं। तो ये है बेटा भौमिक। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Okay. Then निधि, Yes, sir. निधि आपने पूछा है in spite of merits it could not be utilized at large. You are asking about bulk method ना? Yes, sir. तुमने बहुत किस ग्रुप में है? हाँ निधि, तुमने ऐसा प्रश्न बोल दिया कि हम ऑनलाइन इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। Okay, sir. ये ऑफलाइन में आप लोगों को इंडिविजुअली हम बताएंगे। वैसे भी आप यहाँ ऑनलाइन में ये केवल जानिए कि चूंकि ब्रीडर्स का इन्वॉल्वमेंट पेडिग्री मेथड में ज़्यादा है और स्किल उसका ज़्यादा यूज हो जाता है, बल्क मेथड में ब्रीडर का स्किल उतना यूज नहीं हो पाता है, इसलिए ये मेथड उतना कॉमनली यूज नहीं हो रहा है। आपका ऑफिशियल आंसर मेरा ये हुआ, अनऑफिशियल आंसर मेरा कुछ और होगा जब हम ऑफलाइन में आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है। और दूसरा चीज ये कि बेटा वो SSD है ना, दैट इज मॉडिफाइड ऑफ बल्क मेथड, दैट इज अ ब्यूटीफुल मेथड एंड दैट इज बीइंग यूज्ड नाउ एट लार्ज स्केल and through that also lot of varieties are coming. So we cannot say that it is not being at large scale. It is being, with some modifications, it is being used for developing new crop varieties, high yielding varieties. Satisfied हैं आप लोग? नहीं, सभी लोगों से पूछ रहा हूं। Yes, sir. ठीक है। निधि बहुत दब के बोल रही हो, कुछ गड़बड़ है? No, sir. ठीक ना? ओके। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि मैं, हो सकता है देयर आर मेनी साउथ स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम अदर स्टेट्स आल्सो, दे आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इन हिंदी। हमारे हिंदी बोलने से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं नॉर्थ के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को भी फायदा हो रहा है। उन बच्चों का फीडबैक आता है कि सर वो आपके चैनल पे केवल इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा हिंदी बोला करें। तो आप लोगों को कोई दिक्कत, साउथ के जो बच्चे हैं दे आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन हिंदी, जो मैं हिंदी में बोल देता हूं, डेलिबरेटली बोलता हूं बेटा। भौमिक वेस्ट बंगाल से है ना? Yes, sir. कोई issue आप नहीं होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा बेटा? No, sir. I'm quite used to Hindi. दैट्स गुड, क्योंकि मैं डेलिबरेटली हिंदी में जाता हूं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं अंग्रेजी, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में शिफ्ट करता हूं। तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए किसी को। निधि को लगता है प्रॉब्लम हो रहा है? No, sir. नहीं ना? मान के चलो ना, प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा है। Yes, sir. या रजक, SSD में F1 में सिलेक्शन स्पेस प्लांटिंग क्यों करते हैं? इसका आंसर मिल गया आपको लगता है? Yes, sir. Got it, sir. या यू गॉट इट, गुड। काजल, हाउ ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग द टाइम? काजल, काजल का क्वेश्चन है Yes. कि कैसे, आप बताइए बेटा, कुछ अंदाज बताइए काजल। काजल कुछ अंदाज लगाओ कि कैसे। हाँ बोलिए। The question is explanation.
हाँ काजल बोलिए। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है ना, जो प्रश्न आपने किया है काजल? सर मुझे नहीं समझ। प्रश्न तो समझ में आ रहा नहीं? यस सर। क्वेश्चन, यस सर। हाँ, you are able to understand the question Yes, which you asked, how off season reducing the time in developing the varieties. Beta, it is very simple. You see, off season means what? Yes sir. If you are having a small size of population as you are having in SSD, तो आप जैसे बनारस में, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम पुटिंग रियल एग्जाम्पल। मैं राइस का काम करता हूं यहाँ, मैं अभी लगा दिया हूँ, फ्लावरिंग में आने वाला है या कुछ वैरायटीज में आ गया है, और ये फिर हमारा अक्टूबर तक हार्वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर वेट करेंगे जून में, फिर जून में हम लगाएंगे, तो 1 साल लग जाता है, एक ही जनरेशन हो पाया। और अगर स्मॉल साइज है तो हमने अपने टेक्नीशियन को कहा कि भाई दिसंबर में वहां लगता है कटक में, और हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, हमारे सारे पीएचडी स्टूडेंट जाते हैं हर साल, अभी भी 2 बच्चे हमारे कर रहे हैं कटक में। तो ये इतना पॉपुलेशन, अपना हमारा रिक्वेस्ट होता है डायरेक्टर को कि मैं ये भेज रहा हूँ, इतना लैंड चाहिए हमें, ये हमारे स्टूडेंट्स या हमारा टेक्नीशियन ये जा रहा है टू एडवांस द जनरेशन। तो सिंपल वो क्या करेंगे कि आपको करना, सिलेक्शन तो करना नहीं है, हमने बनारस में हार्वेस्ट किया अक्टूबर नवंबर में, और उसका फिर प्रोसेसिंग वगैरह ठीक ठाक से करके हमने भेज दिया कटक, दिसंबर में कटक में लग गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब कट गया, मई में फिर एडवांस हो गया, आपने नेक्स्ट जनरेशन आपने पाया, और फिर जून में हमने यहाँ बनारस में लगा दिया। सो बेटा, ये ऑफ सीजन नर्सरी से 1 साल में डबल हो गया कि नहीं जनरेशन? वैसे आप F2 से या F1 से F2 में जाती नेक्स्ट ईयर, अब आप F3 में चले जाइएगा नेक्स्ट ईयर, जाइएगा कि नहीं काजल? काजल क्लियर हुआ? हमें लगता है सबको क्लियर हो गया होगा ये बात। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देन आदर्श, यस सर। आदर्श आपने कहा कि बल्क में अब 6-7 जनरेशन तक बल्किंग करते हैं, क्यों नहीं हम 20-30 जनरेशन तक? तो बेटा वो तो तब तो आपकी जनसंख्या, आपको खाना आप खिला ही नहीं पाएंगे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? किस पर इफेक्ट? सर जो हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, जो हमारा राइस है। नहीं बेटा, हमारा ये कहना है कि मान लीजिए आपने बल्किंग किया 6-7 जनरेशन तक, और 6-7 जनरेशन तक आपने बल्किंग किया, 7 जनरेशन पे होमोजाइगोसिटी अटेन हो गया। अब आप कितना भी सेल्फिंग करते जाओ 30-40 जनरेशन तक, जितने ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेट्स मिल गए हैं उससे आगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, और जब सेग्रीगेशन नहीं होगा तो आपको ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेट मिलने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। तो इतना लंबा किस लिए आदर्श? 30 साल, 30 साल तक का वेट क्यों करेंगे आदर्श साहब, when you don't have any plus point? नहीं सर, इसमें हम कहीं पढ़े थे, एक लाइन लिखा हुआ था। हाँ जी बोलिए। If bulking period is long, say 20 to 30 season, हाँ। natural selection on the homozygous line. हाँ, नेचुरल सिलेक्शन Act on the homozygous line. एक्ट ऑन होमोजाइगस लाइन। Yes sir. ब्रीडर भी पागल हो जाएगा और समाज भी पागल हो जाएगा, खाना मिलना बंद हो जाएगा बेटा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम नेचुरल सिलेक्शन के इंतजार में हम 30 साल तक इंतजार करें कि अब हम किसान, अब हम अपने लोगों को खाना खिलाएंगे, 30 साल तक भूखे रहेंगे। हमें शॉर्टकट करना है बेस्ट वे में, कैसे शॉर्टकट बेस्ट वे में करें वो करना है।
जैसे बल्क मेथड से हम एसएसडी में आए, एसएसडी से हम आरजीए में जा रहे हैं, रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट। अब हम चाहेंगे कि बनारस में ही हम यही खेत पे जो है एक ही साल में दो लगा लें या 3 कोशिश करें इसी एसएसडी के थ्रू ही। तो बेटा फास्ट करना है आपको। यू हैव टू फीड द पीपल, यू हैव टू फीड द पीपल विद गुड वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ऐसा नहीं करना है आदर्श। डोंट वेट फॉर द सिलेक्शन बाय द नेचर still 30 years, so don't do that. Next, शशांक, नेचुरल सिलेक्शन में डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो जाएं तो कोई मेथड और? हाँ, क्या बोले थे शशांक? हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है शशांक, तुम थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ। नहीं आ रही बेटा, आवाज बहुत दबा हुआ आ रहा है, बहुत धीमा आ रहा है। आप तो मोबाइल पे अगर हो तो आप बाहर निकल जाओ जहां पे हो और वहां जाके प्रश्न करो। नेचुरल, तब तक हम दूसरे का ले लेते हैं, राजनंदिनी का ले लेते हैं। शशांक का बात, हाँ हाँ बोलो शशांक। वही तो कंट्रोल के लिए एसएसडी हम लोगों ने कर दिया। नहीं होगा। जो आपको ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने जो है प्लांट्स, 1000 प्लांट्स आपने लिया है और वो हजारों का प्लांट्स जितने हैं वो सारे प्लांट्स का आप रिप्रेजेंटेशन हर साल कर रहे हैं एसएसडी में, तो लॉस कहां से होगा? और नहीं तो आप पेडिग्री मेथड में चले जाइए। थोड़ा सा पानी और दीजिएगा। आप पेडिग्री मेथड में चले जाइए, ठीक ना? हाँ हाँ बेटा, हाँ कौन बोली बेटा? राजनंदिनी का, राजनंदिनी मास सिलेक्शन इन सेल्फ। हाँ, ये तो तुम्हारा हो गया था बेटा। आई हैव डिस्क्राइब्ड इट, I think. Yes, sir. Okay. रक्षित कहाँ पे हैं? रक्षित, आपने वो प्रश्न सारा किया पेडिग्री का। पेडिग्री मेथड आज हमें करना नहीं था, लेकिन चलिए, आपने कहा कि मिड पेरेंटल वैल्यू में एडिटिव जीन एक्शन, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करेगा बेटा। ये थोड़ा हायर लेवल पे आओगे तब इसको समझाना ठीक रहेगा, लेकिन फिर आपने पूछ दिया तो हम बता देते हैं कि उससे पता चल जाता है। आप जब क्रॉसेस बनाते हैं जीन एक्शंस मालूम हो जाता है, और जीन एक्शंस मालूम होने में अगर आपको ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स यूज करना है और इस एक नई वैरायटी बनानी है, हाइब्रिड हेटेरोसिस ब्रीडिंग में नहीं जाना है, तो एडिटिव जीन एक्शन ही काम आता है। और एडिटिव जीन एक्शन अगर है जिस कैरेक्टर्स के लिए जिन क्रॉसेस में, तो उनको आप लेकर उन पेरेंट्स को चूज करते हैं, तो आपको सक्सेस ट्रांसक्रिप्टिव सेग्मेंट्स के लिए ज्यादा मिलता है और अच्छी वैरायटी आप बना पाते हैं। आर यू गेटिंग रचित माय पॉइंट? यस सर। आपको ये क्लियर है कि एक्टिव जीन एक्शन से ट्रांसक्रिप्टिव सेग्मेंट्स, हाँ, और डोमिनेंस अगर है तो हम लोग हेटेरोसिस की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट सेज कि आप हेटेरोसिस ब्रीडिंग में जाएं। एडिटिव जीन एक्शन है तो आप अच्छे ट्रांसक्रिप्ट सेग्रेट्स पा सकते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप लें। इज इट ओके?
और देन मल्टीवेरिएट एनालिसिस. थोड़ा पानी दीजिए भाई, कई बार बोले हुए की बात. मल्टीवेरिएट एनालिसिस, selection on the basis of parent variance. See, Rakshit, if you are taking the parents which are diverse to each other genetically, you are expecting better transgressive segregants as well as better heterosis, both. So you can develop high yielding varieties as well as you can develop better hybrids too. So this is the meaning of that. If you are through D square analysis, multivariate analysis, if you are selecting the diverse parents, so you should utilize in your breeding program, in hybrid breeding program. So these are the reasons that why you are selecting the plants on these basis. So once you have made your objective clear, accordingly you have to see these things also. It is available in literatures, because whatever breeding we are doing, whatever things we are getting, we are publishing them. So you go through the literatures and you select the better parents as per your objective. It is better to select the proper parents depending upon these gene actions and depending upon your objective. You go to the literatures and then select the parents for your breeding program. Is it okay, Rachit, or something more you need? Okay, sir, it's okay. Yeah. Aniket, SSD recombinant inbred line कैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में? आपने यही पूछा है ना अनिकेत, कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन कैसे डेवलप करेंगे? Yes, sir. इनब्रेड लाइन क्या हुआ? सर जब हेटेरोजेनस को सर सेटिंग करेंगे नियरली होमोजेनस तब तक उसको नहीं सर होगा. हाँ. तो इसमें भी रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन की बात यही कहा जा रहा है कि कोई भी क्रॉस आपने किया और लास्ट में आप होमोजाइगोसिटी अटेंड करें और कुछ रिकॉम्बिनेंट जीन्स जो डिजायरेबल हैं वो कॉम्बिनेशंस मिल गए हैं जिससे आप एक अलग वैरायटी पा जा रहे हैं, इसलिए उसको रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन बोला जा रहा है. वैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत करो. रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन हम लोग मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के थ्रू जो यूज़ कर रहे हैं उसमें जा रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर बताया जाएगा. ठीक है, इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. अनिकेत, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. इसको और क्लियर बताया जाएगा बाद में. सौम्या, नेचुरल सिलेक्शन बल्क मेथड में डिजायरेबल प्लांट्स कैसे मिस हो जाते हैं? यही प्रश्न है ना? Yes, sir. बल्क मेथड में डिजायरेबल प्लांट्स कैसे मिस हो जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन से? इससे मतलब नेचुरल सिलेक्शन का तो ये ना कि अडेप्टेबल होगा एनवायरनमेंट में. हाँ. अगर कोई भी मतलब हम लोग को क्रॉप है अगर वो अडॉप्टेबल नहीं है एनवायरनमेंट में, हाँ. और तो फिर उसका कितना भी अच्छा हो अगर उसको देख नहीं कर पाएंगे तो उसको यूज थोड़ी ना. यस, लेकिन वो नेचर डजंट वांट दैट. अगर नेचर उसको नहीं चाहता है बेटा, एंड इफ इट इज उसका एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, एग्जाम्पल रियल एग्जैक्ट एग्जाम्पल आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन. बस इतना जानो
कि नेचर को अच्छा नहीं लग रहा वो करेक्टर, लेकिन दैट इज इफ दैट करेक्टर इज यूजफुल फॉर यू, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका नेचुरल सिलेक्शन में डिजायरेबल प्लांट्स भी मिस हो जा रहे हैं, डिजायरेबल फॉर यू नॉट फॉर द नेचर। तो नेचर को खराब लगा, नेचर ने उसको हटा दिया, लेकिन आपको वो चाहिए था। तो ये तो ब्रीडर तो सिलेक्शन कर नहीं रहा, आपको ब्रीडर को चाहिए था, तो ब्रीडर जाए पेडिग्री मेथड में, जो उसके पास है नहीं समय। तो नेचुरल सिलेक्शन ने नेचर ने अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर दिया, वो हटा दिया जो आपको चाहिए था। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर कि नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि जो डिजायरेबल प्लांट्स आपके लिए था वो नेचर को नहीं डिजायरेबल था, वो उसने हटा दिया। आर यू क्लियर सौम्या? नहीं, आप दब के बोल रहे, क्लियर नहीं हो, फिर से पूछो। मतलब सर देखिए, जैसे अगर मतलब हम लोग का एम क्या है कि हम लोग को क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है, हाँ कोई ट्रेडिंग प्रोग्राम यूज कर ले, हाँ बेटा, तो अगर हम लोग जैसे उसको किसी एरिया में नहीं, अच्छा चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमको रखने दो सौम्या। लेट मी पुट वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सौम्या, कैन आई पुट? यस सर। ओके, यू सी, हमें हाई यील्ड चाहिए और वो फाइन ग्रेन भी चाहिए, और नेचर ने क्या किया, जो अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइन ग्रेन का, और वो जो भी ऑब्जेक्टिव हो, मेन ऑब्जेक्टिव तो यील्ड का होता ही है, लेकिन अभी मेन ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया कि हमारा दाना चावल का खूब पतला हो। ध्यान देना सौम्या, आई नीड कि चावल का दाना खूब पतला हो, देखने में मार्केट में खूब वैल्यू, खूब पैसा मिले, और उपज भी अच्छा हो। मेन तो उपज के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। थोड़ा उपज कम भी रहेगा तो चूंकि उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, और हम बल्क मेथड से चल दिए। सौम्या, आई एम पुटिंग जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल टू एक्सप्लेन, और बल्क मेथड से हम आगे बढ़ते चले गए। अब वो जो पौधा तुमको मिलना था इतने लार्ज पॉपुलेशन में, एक ही पौधा था, वो नेचर ने कहा हटाओ इसको, ये तो यूजलेस है, इसका उपज बड़ा कम दिख रहा है, नेचर ने उसको हटा दिया। विच यू वांटेड, which was your objective, but you could not get it at the end of bulking. अब बताओ, अब अच्छा से बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अब क्लियर है? That's good, that's good. बोधिसत्व नेचुरल सिलेक्शन इन्वॉल्व को बल्क मेथड, हाउ कैन वी मैनेज? बेटा एक बार फिर से बताइए तो, बोधिसत्व। हेलो सर। हाँ बेटा, फिर से बोलिए एक बार। Hello, sir. हाँ, या प्लीज रिपीट। I was asking that as the yes, sir, as the natural selection is involved in the bulk method. या So as the natural selection is happening, so there is a mix of undesirable characters, na? Yeah. So how can we manage that? How can we should we have the nature will compel us to divert from our aim. So that's the question, huh? या तो अभी just I have given the answer to Soumya. Yeah, I think it has cleared you. yeah, got it, sir. Okay, that's good. So I think now we are at the end of today's discussion. If something more you have, we can still discuss it. If someone is left with some doubts, we can deal it. हाँ हाँ बेटा पूछिए, आप सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग एक मिनट, आप सभी को मेरा ये कहना है, आप एब्सर्ड क्वेश्चंस भी पूछें, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग इवन एब्सर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। वही एब्सर्ड क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको बहुत फायदा करे और आपके सभी लोगों को फायदा करे, पूरे समाज को फायदा करे, इसलिए आप क्वेश्चन पूछने में हिचके नहीं। अगर हम कुछ डांट भी देते हैं, कुछ कर भी देते हैं, तो आप बुरा न माने, लेकिन आप प्रश्न करें, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा।
sir. शानू गंगवार। Yes, sir. हाँ बेटा बोलिए। Can I? हाँ या Yes, sir. So in SST method, we are used only one seed randomly in that 3 generation. जी बोलिए। Yes, sir. हाँ हाँ बेटा बोलो। So how? So sir, to rather than natural selection, sir, my aim is the plant is a resistant variety. हाँ So then I randomly choose only one seed or those plants is in the resistant variety we are developed. हाँ So how can randomly choose one seed after generation and next generation so on? हाँ रैंडमली में बेटा, रैंडमली में देखो, रैंडम जब होता है तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी और ये उम्मीद की जाती है कि वी आर गोइंग टू, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ शानू, इसमें रैंडम, हाँ रैंडम में यू एक्सपेक्ट that all types of plants you are going to get. Don't worry for that. So whatever is your objective is there, you will be getting it. It is supposed that you are going to get it. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सर मैंने रस्ट के लिए मुझे कोई वैरायटी चाहिए जैसे, हाँ तो सर F1 का क्रॉस करने वाला F2 ले लिया, उसका मतलब रैंडमाइजेशन में हो गया, F3 जनरेशन मुझे बल्क में ग्रो करनी है। हाँ सर ओके सर, हाँ। अब मुझे एक सीड लेना है, मतलब जो SST मेथड है वहाँ से मैं वन सीड लूँगा, किसी डिजायरेबल प्लांट से नहीं लूँगा, हाँ तो रैंडमली सर उसको मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। वो रैंडम में उसको मिस थोड़ा, नहीं आ जाएगा डोंट वरी फॉर दैट, वो आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और दूसरा चीज ये है कि अगर कोई वैरायटी तुम डेवलप करना चाहते हो, रेसिस्टेंट जिसकी बात कर रहे हो, वो आगे और ब्यूटीफुल्ली कर लोगे, हम आगे मेथड्स बताएंगे, ठीक है। अभी इस पे ये कंसंट्रेट करो कि यू आर नॉट गोइंग टू मिस, रैंडम मेथड में आप कुछ मिस करने वाले नहीं है, यू विल बी गेटिंग ऑल टाइप्स प्लांट्स, ठीक है, और वो जो आप चाह रहे हो वो भी मिलेगा। लेकिन इफ यू आर विलिंग टू डेवलप और improve a variety which is very popular and has become susceptible, you want to develop a resistant variety. So for that, what you are going to do, I will be dealing in next method, that is beautiful method, you will be dealing to that. क्रॉस मेथड, Beta? क्रॉस मेथड ना सर? Yeah. So all types of things you are having. So depending upon your availability, your feasibility, your time, everything, you have to use that, and objective, you have to use that. Sanu? Yes, sir, made is still like that. Yes. Don't worry for that. By end of this semester, I would like to develop full confidence in you that you are able to develop varieties in cell-powered crops. Okay? Yeah. So something more you need? Anybody? Sir, I have one more question. हाँ बेटा, no problem. Many more you can. आज हमारी छुट्टी है और आज मैं थका भी नहीं हूँ। डेली मैं थक जाता हूँ शाम तक। हाँ बोलिए बेटा। Sir, suppose we want to develop a variety which is resistant towards a particular disease. हाँ तो सर ये तो जरूरी नहीं है कि वो डिजीज नेचर में हर साल आए। हाँ के लिए तो सर हमें डायरेक्टली अटेंड करने में हो सकता है, हमको लेट हो जाए, F7 तक हम ना अटेंड कर पाए, F7 में हम सेलेक्ट करना करता है, उसको सेलेक्ट करना होगा, ऐसा हो सकता है सर। हाँ बेटा बोलिए। बेटा आगे नहीं रेसिस, हाँ शानू, दैट आई एम वेरी हैप्पी इफ यू कैन यू आंसर। नेचर में सिल्वर का थोड़ा रश नहीं आएगा तो हम आर्टिफिशियल कंडीशन देंगे, प्रोवाइड कराएंगे ना उसको रेजिस्टेंस। Yes. यस, वो आंसर मिला बेटा तुमको? पता नहीं कहीं दूसरे ग्रुप में हो तो आवाज नहीं जाता है ना उसमें। यस सर, आवाज आ रही है।
आ रहे कुड यू गेट हिज आंसर? Yes, sir. सेटिस्फाइड हो? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड, क्योंकि ब्रीडर्स के पास सारी अपॉर्चुनिटी है. अब इट इज अप टू हिम दैट हाउ मच ही कैन यूज, है ना? सौम्या, सौम्या कुछ बोल नहीं रही है, बंद करें? अभी और कुछ क्वेश्चंस आएंगे. सर पेडिग्री मेथड में पेरेंट सिलेक्शन के क्या वो क्राइटेरिया में लिखा है कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट. तो फिर सर प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस मतलब क्या सब डाउट करो कि फिर हम देखते हैं फिर उसको. बेटा मैं बताऊं ऐसा है ना कि हम लोग बहुत सारे पेपर्स जो पब्लिश करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स लेकर हम लोग क्रॉसेस बनाए रहते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं रेफरेंसेस में. आप इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर पेरेंट्स तो आप क्रॉस बना के देख लीजिए. जैसा उसने पूछा था जीन एक्शन वगैरह की बातें, वो सब आप देख लीजिए. एडिटिव जीन एक्शन की बात हो रही है, वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, कितना वेरिएबल है, वो सब करके तब आप सिलेक्शन करिए तो अच्छी बात है. क्रॉस करके एक बार देख लीजिए, और देखना क्या, उसको देख के फिर आगे बढ़ा दीजिए. अगर अच्छा है तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, फिर रुकना नहीं है, बैक नहीं होना है. अदरवाइज आप लिटरेचर से जाओ और बहुत सारे पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उसमें आप खोज लो कि ये पेरेंट्स हैं जो सजेस्ट किए जा रहे हैं. जो हम लोग क्रॉसेस बनाते हैं और पेपर पब्लिश करते हैं, उसमें सब सारा डिटेल दिया रहता है कि उसमें कंक्लूड भी करते हैं हम कि ये पेरेंट्स अगर क्रॉस करो तो अच्छे ट्रांसक्रिप्ट सेगमेंट्स मिलेंगे, इसके लिए अच्छे मिलेंगे, इस ट्रेड के लिए अच्छे मिलेंगे. ऐसा सब हम किए रहते हैं, उसमें रेफरेंसेस में रहते हैं. अब नहीं है, आप बहुत पर्टिकुलर हो तो आप अपना मन करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सौम्या, यू कैन डू इट. ठीक है. समथिंग मोर यू नीड? नहीं? Excuse me, sir. हाँ बोलिए विवेक. Sir, yes, sir, I have a question. हाँ विवेक बोल. How does the mode of reproduction affect the mode of breeding? अच्छा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेटा यही हो गया ना कि आप क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड. तो बेटा तो वही तो मेथड्स अलग अलग करेगा. अब जैसे आपको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो आप उसमें प्योर लाइन सिलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे. आप बताइए, अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, उसका नेचर हेट्रोजाइगस है, बेटा प्योर लाइन सिलेक्शन की तरह अगर आप हैंडल करेंगे आपने, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन. इसीलिए मैं कह रहा हूँ एब्सर्ड क्वेश्चंस भी आने चाहिए, सो दैट यू शुड गेट मोर क्लैरिटी इन दैट. कि जैसे आपने मान लीजिए आपने प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू आप मक्के को आप शुरू कर दिए. आप क्या करेंगे, एक पौधा देखेंगे बहुत अच्छा है, दैट इज हेट्रोजाइगस, यू नो. आपने उसकी सेल्फिंग करा दी या इनब्रीडिंग करा दी और उसका सीड ले लिया, आप बहुत खुश हो गए कि अब हम आगे बढ़ेंगे. आप नेक्स्ट जनरेशन में जैसे ही गए वो आपने सेल्फिंग की तो होमोजाइगोसिटी, सेल्फिंग से तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है. ठीक है, तो अब जैसे ही सेल्फ की आगे जब गए, जनरेशन लगाए उसकी प्रोजनी, तो उसमें वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, ध्यान रखना. और फिर अगर सेल्फिंग कर दी वो पौधा छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा. फिर सेल्फिंग कर दी तो वो और पतला हो जाएगा और लीन थीन हो जाएगा और उसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कमजोर हो जाएगा, बिकॉज वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होते जा रहा है. और लास्ट में जब हम लोग इनब्रीड लाइन बनाते हैं मक्के वगैरह में, लास्ट में आप देखते हैं कि इतनी हालत खराब हो जाती है इनब्रीड्स की कि आपको उसमें से हजारों इनब्रीड्स को आप सोचते हैं कि लेकर चल रहे हैं, पता लगा कि 10-20 इनब्रीड लाइन किसी तरह से बच पाया, जर्मिनेट ही नहीं करता है.
जर्मिनेट कुछ किए मर जाते हैं, कुछ जर्मिनेट करने के बाद, कुछ बढ़ने के बाद तब जाके मर जाते हैं, कुछ जर्मिनेट करने के बाद बढ़ के फिर फ्लावरिंग में भी आते हैं तो फिर उसमें सीड ही नहीं बैठता है। बहुत तरह प्रॉब्लम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो हाउ कैन यू यूज दैट मेथड इन मक्का, in cross planting? So this was the answer to you, to all also. Something more beta? और किसी का कोई डाउट कुछ तरह किसी तरह का? और दूसरा आप लोग फीडबैक ये दीजिए कि क्या ये मेथड जो हमने शुरू किया है ये ठीक है आप लोगों के लिए कि नहीं ठीक है, या कोई नुकसान है इसमें? बढ़िया है। नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ शानू, वो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर आवर जो मैं चलाता हूँ, यह एक नया मेथड ऑफ टीचिंग है। इज इट ओके? क्योंकि और कोई नहीं चलाता ऐसे, ये मैं ही चलाता हूँ। तो आप लोग सेटिस्फाइड है इससे? मैं कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं आप लोगों के ऊपर? आप पढ़ लेना है। कंटिन्यू करें, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को ना? ओके, सो गुड नाइट बोले आप लोगों को अब। ओके, thank you very much for sparing your time on even holiday. So thank you. Good night to all of you. Okay. Good night.